Can we all chant Om 3 times? Take a deep breath. Please chant after me. Mangalam dishatu me akashaha. Mangalam dishatu me vayuhu. Mangalam dishatu me agnihi. Mangalam dishatu me apaha. Mangalam dishatu me prithvi. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Hari Om. Respected Vice Chancellor Shishiji Agrawal, Mr. Gupta ji and dear friends, I'm extremely honored to be here to share a few words. Now, since both have spoken in English, so I can speak only in English, right? Yes. How many of you wanted bilingual? Yes. So, how many of you wanted bilingual? Raise your hand. Okay, majority. I have to follow democracy now. But first, at the outset, I want you to excuse me. Past 4-5 years, alone I've been speaking Hindi. So there will be some Vyakarna dosh. So usko mat pakadna. So forget about my Vyakarna. And you know, in mobile, there is called auto spelling check, you know. Whenever they make a mistake, it does an auto check. Can you do the auto check? Yes or no, sir? So the language is not thing important, but what is important is the context. Okay? So just I'll try. I have no much opportunity to speak in Hindi, but I'll try with a lot of grammar mistakes. A youngster, let me start off with English, then I'll pick up. A youngster was next to a car. And no parking sign board tha in Delhi mein. A constable was passing that side and tells the youngster, hey, there's a car, remove this car. On the youngster being a typical Delhiite, he said, no. इतना जोर से कहा no, the constable thought definitely MLA का पुत्र होगा, and therefore चले गए exams. A sub-inspector was watching all this and says, अरे क्या cheek to this guy? So he goes to him and says, a car है, no parking, इसको निकालो. And immediately the youngster more loudly said, no, you say, more loudly said, no. This is Bhopal style, not Punjabi style. Come on, with more, और थोड़ा दम से. Alright, said, no, my God, MP ka beta hoga shayad. Alright, so he went away. An IPS officer was watching all this and said, what cheek to this guy? He goes to him and says, hey, there is a car, there's a no parking, remove this car. And the youngster said more loudly, no. And being an IPS officer, he says, अरे क्यों नहीं? अरे the car है, no parking side है, क्यों नहीं निकालता है? And to which the youngster says, ये मेरा गाड़ी नहीं है. So क्यों निकालना है? ये मेरा गाड़ी नहीं है. Then the youngster, the IPS officer says, आपका गाड़ी नहीं है. So why did you not say from शुरुआत से? Why did you not say? To which the youngster says, देखो, मेरे गुरुजी एक उपदेश, आदेश और संदेश दिया. Somebody asked a question, answer to the point. इसका उपदेश था, आदेश था, संदेश भी था, क्योंकि he said a Sanskrit word, शब्दजालम महारण्यम. ये शब्द तो महाजाल है, इसमें अटक जाकर और वाद और विवाद में कोई भी नहीं जीता है. So therefore answer to the point. You said निकालो गाड़ी. I said no. Why should I say this is not my car?
whose car it is, whether the person शादी हुआ नहीं हुआ, whether he has got a stepney or no stepney. Sir, this is a very smart answer. Yes or no? A smart answer का बावजूद भी ये stupid answer है. Because by this there's unnecessary argument, and an argument वाद विवाद में कोई भी नहीं जीता है. लगता है हम जीत रहा हूं. Nobody wins. It's a smart answer, but still it is a stupid answer. I think education should address this. हम लोग बहुत स्मार्ट हो गया, बट प्लीज अंडरस्टैंड, बट हमारा स्मार्टनेस आकर हमारा फूलिशनेस को विध्वंस करना है, उसको विनाश करना है. The very skill of smartness is our smartness should destroy foolishness. But the question is, instead of smartness destroying foolishness, is happening, the smartness is protecting foolishness. Yes or no, friends? You see in so many TV debates, बहुत smart है, क्या वाद क्या विवाद, but basic foolishness है. So smartness is not destroying foolishness, and if smartness protects foolishness, the effectiveness of smartness becomes of no avail. Hence Lord Krishna in the Gita says, अज्ञानेन तु ज्ञानम आवृतम तेन मुह्यन्ति जंतवः. अरे हमारा अज्ञान आकर हमारा पागलपन, हमारा जुनून, our मूढ़ता को संरक्षण कर रहा है. Our ignorance should not be protected by knowledge. Knowledge should destroy ignorance. And if knowledge does not destroy ignorance, the purpose of knowledge is of no avail. Therefore कबीर अलग ढंग से कहा, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बयाना कोई, डाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होय. So therefore reading is not going to help, sir. So I feel the purpose of education is, can you be alert to the fact our knowledge should destroy foolishness, should not protect foolishness. So don't get fooled, because being smart बहुत beautiful उत्तर दे सकता है हम लोग. Like teacher asked the student, what is common between Jesus, Krishna and Buddha? The student replied, all are born on government holidays. बहुत smart answer हो गया वो, but still food is stupid answer है. Now please say, I want you to pause, sir. Technologically, humanity has tremendously grown. Yes or no? Technological wise, इतना वृद्धि हुआ, इतना समृद्धि हुआ. Yes or no, sir? I want you to participate in this, and then you can ask me questions. Technologically, humanity has tremendously grown, but has human consciousness truly grown? Prince, pause. Has human consciousness grown? Yes. Hardly it has grown, sir. Where it has grown? Weapons of mass destruction have increased. This planet is about to be threatened now. According to Stephen Hawking, sir, it's a matter of few years where this planet Earth is going to be destroyed. Therefore, scientists are already planning to go to Mars. Some log have already booked ticket to Mars also. And then what? With our foolishness here, you go to Mars and you destroy Mars also. Weapons of mass destruction have increased or not, sir? Yes or no, sir? इतना increase हो गया, कोई भी कारण से, if there is a bomb pressure, Hiroshima, Nagasaki is going to be nothing. So therefore technology का वृद्धि हुआ, but आत्मा और चैतन्य का वृद्धि नहीं हुआ. Nations are more organized in destroying each other. And therefore if you see हमारा चैतन्य एक भिखारी का अवस्था हो गया. Therefore in my corporate talks I always give this example. Right? An American comes to India or to the financial capital. Which is financial capital? Bombay. और बॉम्बे में आकर इतना चकित हो गया, हैरान हो गया, अरे इंडिया इज ग्रोइंग बोलता है भी, इतना भिखारी लोग विस्तृत है, इतना भिखारी लोग है. सो दिस अमेरिकन गेट्स कंफ्यूज एंड देन ही गोज टू अ भिखारी टू गिव सम मनी, एंड दैट भिखारी, दैट बेगर, अरे दोनों हाथ फैला हुआ है, दिस साइड. The American asked him, why have you spread both the hands? He says, Danda is doing very well, so I opened another branch. Business is doing very well, I opened another branch. Dekho, but consciousness still bikari hai. Then he said, my God, Indians are dangerous people. So he doesn't give any money, goes to the next bikari. Fortunately, the bikari is only one hand.
So American is about to give money. Then he pauses and says, American पूछता है, किधर भी देखा, I have seen you somewhere. And the beggar says, I have also seen you somewhere. He says, first time New York से आया हूँ. Have you come to New York? He says, no. Then where have you seen? And the youngster, the Bikari says, we are both friends in Facebook. अरे देखो टेक्नोलॉजिकली इतना savvy हो गया, but please see, human consciousness is still a beggar. Are you seeing, friends? I just don't want to give a सिद्धांत. If you don't understand, जब हमारा चैतन्य वो दाता नहीं ही भिखारी है, then please इतना भी समृद्धि right जीवन का विघटन ही हो जाता है. That's why there's a beautiful thing there. Right, पत्थर एक बार मंदिर जाता है, पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, और इंसान बार बार मंदिर जाता है और पत्थर ही रहता है. राइट, पत्थर ही रहता है. एंड somebody said beautifully, मंदिर भी क्या गजब की जगह है, मंदिर भी क्या गजब की जगह है. भिखारी बाहर भीख मांगता है और अमीर लोग अंदर भीख मांगता है, दोनों भीख मांगता है. So therefore ask this question, sir. If हमारा चैतन्य always भीख मांगा, where is the question of extraordinary growth? You must be a giver rather than a beggar, sir. He gives not the best who gives the most, but he gives the most who gives the best. If I cannot give bountiful, yet I will give freely, and what I lack in my hand, I will supply it with my heart, sir. For the heart of education is the education of the heart. So if your consciousness is always bhikhari, please understand there's no growth. Even relationship becomes messy. Have you seen relationship? A lot of people get married. One is begging happiness, gets married to another person. And she is also begging happiness. When two beggars after happiness gets married, क्या हो जाता है? Beggary increases. Beggary increases. Therefore, most of marriages, I do not know Bhopal कैसा है, दूसरा जगह most of marriage engagement ring है, marriage ring, suffering, enduring. Because they are not a giver of joy. There is always a beggar of joy. Right now, as a speaker, I have to give joy. And you as a listener, sir, should give joy in your very listening. But if you don't give joy, looking at it, and therefore, even a joke cracked, at least 20% of you didn't smile also. And especially, I come from an IT industry, Bangalore. IT up. When I crack jokes to the IT people, they hardly smile. They study my software and hardware, but they don't smile. I had to stop my speech and ask somebody, why are you not smiling? He said, why should I smile? कोई भी प्रश्न पूछता है, why बोलता है. अरे, in the Navarasas of Indian classical dance, one rasa is हास्य रसा. हास्य तो हंसना है. अरे, face इतना sad है, as though piles complain, constipated look. And still the person gets married. और बाद में honeymoon भी जाता है वो. Then child also comes out like this. And then says, Swamiji, 107 books you have brought out. How to bring up children, Swamiji, they're always sad. I said, manufacturer's defect. मैं क्या कर सकता हूँ? I'm not joking, sir. Some people are so sad. Lord Krishna says in the Gita, prasanna chetasa ashuhu buddhihi paryavatishthati. सर्वदा प्रसन्न भाव से युद्ध करो, he says. युद्ध क्षेत्र में भी प्रसन्न भाव से युद्ध करो. जब प्रसन्नता होता है, आपका आत्म स्थिति उत्कृष्टमय होगा. और वेरी सैड अनहैप्पी फेस होगा, देन प्लीज ये आपका ऊर्जा भी निकृष्ट है, उत्कृष्ट नहीं हो सकता है. So therefore, Lord Krishna in the Kurukshetra says, prasanna chetasa. And these people are sad. Any question मैं पूछता हूँ, why are you not smiling? Why should I smile? Why should I smile? Then I ask, आपका नाम क्या है? He said, why Venkatesh. Correct दिया there, आपका father का नाम why Venkatesh. सब why. I said to make your marriage work, laugh. Again पूछता है why? I said the rate of divorce among marketing people are the least. You know why? Because a marketing person, any sale को close दे, 16 to 17 is the hit rate. Any sale close 16 to 7 global statistics है.
So therefore, he, all right, somebody says इनकार करता है, still he smiles. इसका अनुशासन है, because hit rate is 16-17. So इसका training अनुशासन always चेहरा smile कर रहना है. All right, when the wife tells the marketing husband get lost, he will smile and give the visiting card. So most of marriages work in marketing. Whereas a computer person, wife says get lost, he'll go to the Googles and look out for options. Sir, I'm trying to say even marriage can become meaningless, sir. So learn to be cheerful. Learn to be cheerful. All right? And if you're not able to be cheerful, please, you are missing something in your life, sir. So I am saying, if your consciousness is really growing, and if you are really cheerful, there is a utkrishta urja which gets created in you. And if you are sad, miserable, unhappy, there is a nikrishta urja within you. And therefore Sanskrit में दो शब्द है, जीवात्मा है, एक परमात्मा है. जीवात्मा और परमात्मा तो भगवान को अलग व्याख्या है, बट योग दृष्टिकोण से जीवात्मा मतलब हमारा भीतर निकृष्ट ऊर्जा है. गुस्सा, दर्द, नफरत हो, सो इट इज निकृष्ट ऊर्जा. व्हेन यू हैव प्रेम, अनुकंपा, दया, संकल्प, क्षमा, धीरज, इट इज उत्कृष्ट ऊर्जा है. सो उत्कृष्ट ऊर्जा इज कॉल्ड परमात्मा और निकृष्ट ऊर्जा इज कॉल्ड जीवात्मा. सो इन छिन्न मुद्रा में, इस मुद्रा में, दिस इज कॉल्ड जीवात्मा, अहंकार. आओ बाहर आओ, दिखाएंगे मैं. लाइक दिस इज जीवात्मा, सर. द थंब इज कॉल्ड परमात्मा. Right, because this is the basis for all the finger. So the Jivatma should surrender to the Paramatma. Tab your life is going to be mukammal hai. Then your life is going to be Purnam. Purnamadaf Purnamidam. So in whatever vyavahar, for you to be from an ordinary to extraordinary, sir, हमारा भीतर lower energies भी होता है, हमारा भीतर higher energies भी होता है. Right, and if you can bring the higher energies in whatever you are doing, in your work, when you bring that higher energy, you bring Paramatma into your day-to-day level, then you will find you will optimize an experience, you will not minimize an experience. हम लोग ये experience को optimize करना है, but we often minimize an experience. And when you minimize an experience, it is not the experience, sir. It is how are you optimizing or minimizing an experience which matters, sir. So I am saying, consciousness wise, technology wise, इतना वृद्धि अभिवृद्धि हुआ, but चैतन्य wise वृद्धि नहीं हुआ, because निकृष्ट ऊर्जा का असर ज्यादा है हमारा जीवन में. If you are not understanding what I am saying right now, and you आप upset हो गया, right? When you are upset, you are a निकृष्ट ऊर्जा. And if you are not understanding क्या मैं बोल रहा हूं, then उत्कृष्ट ऊर्जा है. What is Swamiji trying to say? In his broken Hindi, what is he trying to say? और सजगता तो सुनेगा, देन केवल मेरा अल्फाज को नहीं पकड़ेगा, बट मेरा अल्फाज के पीछे एक अर्थ होता है, उसको ग्रहण करेगा. केवल अर्थ को नहीं ग्रहण करेगा, ये पीछे एक भाव है, और इस भाव के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, एक भूमिका है, उसको ग्रहण करना है. जब उसको ग्रहण करता है, केवल अल्फाज के ऊपर आप सीमित नहीं होगा. सो इवन लिसनिंग इटसेल्फ कैन बिकम अ वेरी पावरफुल थिंग, सर. So therefore, please get this very, very clearly, sir. So therefore, I'm only highlighting this. If you want to be extraordinary in your life, कौन सा ऊर्जा आप बाहर ला रहा है? निकृष्ट ऊर्जा है, काम क्रोध लोभ मोह मद वात्सल्य ऊर्जा है, और उत्कृष्ट ऊर्जा, यही बड़ा तपस हो जाता है. So therefore, in Veda, सतपो तप्यथा तपस्तप्त्वा तपो ब्रह्मेति विजानात. तपस ही एक ब्रह्म है. राइट, तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व. द वेद बोलता है थ्रू तपस से आप समझ सकता है राइट जीवन को. सो देयरफॉर दैट तपस इज हमारा भीतर कौन सा ऊर्जा प्रकट हो रहा है. यू हैव टू बी अलर्ट. सो देयरफॉर फॉर दैट टू हैपन, फर्स्ट बदलाव, फर्स्ट रूपांतर किधर होना चाहिए? किधर होना चाहिए रूपांतर? खुद को होना चाहिए. मगर हम लोग, हमारा फोकस किधर है? यू वांट टू चेंज योर वाइफ, वाइफ बिजी चेंजिंग द हस्बैंड. सो दूसरों को चेंज करने के लिए ज्यादा मुख्यता, राइट, खुद को चेंज नहीं करता अभी. इफ यू वर्क ऑन चेंजिंग योरसेल्फ, लाइफ बिकम्स डिफरेंट. मेरे एक पुस्तक में एक ब्यूटीफुल कथा, आई हैव सेड दिस. अ यंग गर्ल, 17 years गर्ल, गोज टू अ डॉक्टर, राइट, और बोलता है
एवरी पार्ट, एवरी प्रति अंग मेरा दर्द है। ओ डॉक्टर तो FRCS है, ऐसा नहीं लगता है। एवरी अंग दिखाइए। द डॉक्टर सेड विथ हर पॉइंटिंग फिंगर, उंगली में शी टचेस हियर, इट्स पेनिंग, खुद ही टच स्पर्श कर रही, एवरीवेयर शी टेल्स, डॉक्टर देखो इधर भी इधर भी एवरीवेयर। डॉक्टर भी कितना हैरान हो जाता है, ऐसा नहीं लगता है। देन आफ्टरवर्ड्स डीप प्रतीक्षा, डस राइट, ही लुक्स एट डीपली, इंस्पेक्ट्स, निरीक्षण करता है भी। देन बाद में से यू आर परफेक्टली ओके। देन किधर से दर्द आ रहा है भी? आपका पॉइंटिंग फिंगर फ्रैक्चर्ड है। ये पॉइंटिंग फिंगर फ्रैक्चर्ड है, इसलिए जब आप दांत में कैविटी होता है और आपका वाइफ ब्यूटीफुल बिरयानी प्रिपेयर करता है, यू ईट और वो बिरयानी का समस्या नहीं है, आप दांत का है। ऐसे मानसिक दांत में वी हैव ऑल दिस दर्द सर, एंड देयरफॉर वी गेट अपसेट। Are you getting, sir? So the first change has to happen where? We have to change ourselves. Yes or no, sir? Yes. थोड़ा जज्बा डालो ना अभी. Right. Right. I know some of you may be PhD, but PhD should not be permanent head damage. तो हार्ट को भी बिल्ड करो ना अभी. Because education is bringing the best of your head and best of your heart. And lot of people इतना हेड दिमाग और हार्ट ही नहीं है. That's why there's a beautiful शायरी which says, इश्क नाजुक मिजाज है, इश्क नाजुक मिजाज है, बेहद अकल का बोझ उठा नहीं सकता, अकल का बोझ उठा नहीं सकता ऐसा. And therefore another शायरी which says, सर झुकाने में नमाजें अदा नहीं होती, दिल चुकाना पड़ता है इबादत के लिए, दिल चुकाना पड़ता है इबादत के. सो दिल डालो. अभी आप शागिर्द है इधर, राइट, अब दिल डाल कर सुन लीजिए. आपको दिल को एक प्रक्षालन करना है और दिमाग को भी प्रक्षालन करना है. दैट इज एजुकेशन सर, दिल और दिमाग. देन आप असाधारण राइट अंतर्दृष्टि होगा. बट इधर साफ नहीं, उधर साफ नहीं. देन भगवान को प्रार्थना करो, भगवान आपको परिस्थिति को बदलाव करो, परिस्थिति को बदलाव करो. मेरी परिस्थिति बहुत खराब है. आई गो टू बॉम्बे एंड जैसे स्वामी जी यू से बी हैप्पी, यू गेट मैरिड टू माई वाइफ स्वामी जी, देन देखेंगे हैप्पी है नहीं. बॉम्बे लोग बहुत चालू है. यू वर्क विथ माई बॉस स्वामी जी, देन यू विल सी. बिकॉज क्या हो गया लोगों का परिभाषा, जब परिस्थिति का बदलाव होता है हमारा जीवन का बदलाव. यस और नो सर? मोस्ट ऑफ अस वी फील राइट, परिस्थिति का बदलाव हमारा जीवन का बदलाव है. बट हिंदू सनातन धर्म में, स्पेशली भगवद गीता में, परिस्थिति का बदलाव होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग नो, बट इससे ज्यादा आपका मनोस्थिति का बदलाव होना चाहिए. परिस्थिति इतना भी बदलाव हो, इतना भी अनुकूल हो, बट आपका मन, एज कबीर से, आपका मन छलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, दो फाटन के बीच में साबत बचाना कोई. आपका मन बड़ा गड़बड़ चलती चक्की होगा, इतना भी परिस्थिति हो, यू विल नॉट गेट द बेस्ट ऑफ यूर सर. यस और नो सर? देखो, द ग्रेटेस्ट वायरस, हमारा ग्रेटेस्ट अज्ञान क्या है? वेदांत में बोलता है मूल अविद्या को पकड़ना है. देयर स्थूल अविद्या, मूल अविद्या. स्थूल अविद्या मीन्स आई डोंट नो फिजिक्स, आई डोंट नो केमिस्ट्री, आई डोंट नो बायोलॉजी, ये स्थूल अविद्या है. मूल अविद्या मतलब बेसिक अविद्या क्या है? या आप बेसिक अविद्या को नहीं निकालेंगे, देन ये इतना ब्यूटिफुल कुदरत भी, इट विल नॉट लुक लाइक जन्नत, इट लुक लाइक नर्क. सो कृष्ण भगवान बोलता है आप अज्ञान का कारण आप इतना दर्द, पीड़ा, संघर्ष में है, परिस्थिति का कारण नहीं. देयरफॉर वाजपेयी जी, our ex prime minister, he says very beautifully, हिंदी का कविता है, भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परिछाई से हारा. इसे जब अज्ञान का विद्यमान हो, भरी दोपहरी में, इन द पीक ऑफ डे में अंधियारा कैसा हो सकता है? डार्कनेस. भरी दोपहरी में कैसा अंधियारा? बढ़ाई हो गया अज्ञान का असर. भरी दोपहरी में अंधियारा,
सूरज परिछाई से हारा. हाउ कैन शैडो डिफीट द सन सर? असंभव है, बट माया का असर है, असंभव भी संभव हो गया. सो भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परिछाई से हारा, अंतरथम का नेह निचोड़े, अंतरथम का नेह निचोड़े, इन द डीपेस्ट ऑफ योर बीइंग, वो नेह और स्नेह, वो उत्कृष्ट ऊर्जा निचोड़े, ब्रिंग इट आउट. अंतरथम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती को सुलगाए, बुझी हुई बाती को सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए. राइट. सो हमारा अंतरथम से लेना है, अंतरतम. अब स्नेह लेना है बाहर. आप सुन रहे अभी, आप लोग विद्वान हैं, विदुषी हैं, बट प्रेम से सुनो. जब प्रेम से सुनता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है. प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है. अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है. सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड, अंतरथम का नेह निचोड़े. सो परिस्थिति सर इतना ज्यादा असर नहीं, आपका मनोस्थिति का असर ज्यादा है. आपका गुस्सा, आपका नफरत, उसका मनोस्थिति, वो मनोस्थिति को बदलाव करना है. मगर हम लोग क्या हो गया, हमारा भीतर अंधियारा इतना है, वी आर ऑलवेज थिंकिंग परिस्थिति को चेंज करो, परिस्थिति को चेंज करो, मनोस्थिति को ऊपर ध्यान ही नहीं. अरे सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने का जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे. राइट. सो देयरफॉर इसको बदलो. अभी ये नहीं होगा आपको भीतर, देन प्लीज ये हमारा जीवन विघटन हो जाता है. दैट्स व्हाई आई लव दिस ब्यूटीफुल शायरी. अरे आदमी अरे रोता है, खुदा के ऊपर रोता है. अरे क्या तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, मेरा तकदीर है भगवान बट किस्मत नहीं खुलती. ताजमहल बनाना चाहता हूं मगर मुमताज नहीं मिलती. और इतना दुख और दर्द में है. सो खुदा ने राइट आशीर्वाद दे दिया. ओके. सो बिकॉज मुमताज नहीं मिलती देयरफॉर दर्द में है. सो देन आफ्टरवर्ड्स ही मीट्स मुमताज. परिस्थिति बदलाव हुआ, इसका मनोस्थिति बदलाव हुआ क्या. देन ही राइट्स अ कविता, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, मुमताज मिल गई है मगर शादी नहीं करती. अगेन दुख में है, अगेन दर्द में है, अगेन पीड़ा में है. सो भगवान ने तथास्तु बोल दिया, शादी भी हो गया. जैसे आप लोग का शादी हो गया ना, ऐसे शादी हो गया. परिस्थिति एकदम अनुकूल है. सो खुशी है क्या. अगेन इसे तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती. महल बनाना चाहता हूं मगर मुमताज नहीं मरती. अरे देखो, इतना बदलाव, परिवर्तन का बात, परिस्थिति, आपका मनोस्थिति, यही दर्द है. आर यू गेटिंग सर. इसलिए कृष्ण भगवान बोलता है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मा एव आत्मनः बंधुः आत्मा एव आत्मनः रिपुः. वो अर्जुना, उद्धरेत, ऊर्ध्वम नयेत, उत्कृष्टम नयेत, नात्मानम अवसादयेत. आप खंडन मत कर दीजिए आपका. आत्मानम अवसादयेत, आपका मन ही बंधु है, आपका मन ही शत्रु है. मन ही बंधु है, मन ही शत्रु है. सो ये मन शत्रु हो जाएगा, लाइक हाउ फॉर हैपन टू दुर्योधना, हाउ इट हैपन टू दुर्योधना एंड शकुनी. एवरी टाइम देयर इज गोइंग टू बी मिजरी मिजरी मिजरी. सो मन को बदलाव करना है. सो परिस्थिति का बदलाव करना एक भाग है, मनोस्थिति का भी बदलाव करना है. नाउ आई वांट टू, आई सी इफ द की नोट वर्क्स. देन आई वाज सीइंग नेशनल ज्योग्राफी में देख रहा था. नेशनल ज्योग्राफी, आई एम अ लवर ऑफ एनिमल्स. नेशनल ज्योग्राफी में, यू नो, दे पॉइंटेड आउट द बिगेस्ट, द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स व्हिच हैव किल्ड, मोस्ट पावरफul animals. Let me see if I have the keynote with me. Who has been man's greatest killer? Can you see that? Who has been man's greatest killer? There are 10 animals, जानवर, lion, rhinoceros, elephant, shark, etc.
Who has been the man's greatest killer? None of the 10 powerful animals has been the killer to human beings maximum. Can you guess count? Mosquito hai. Very good. Please see, who has killed humanity more are mosquitoes. Mosquitoes have killed humanity more. Itna small hai dekho, it has killed us more. When I heard this, then I realized one thing. Are more than mosquitoes who has killed, sir? Please see, from a spiritual angle, according to spirituality, the biggest killer is, you know what? It is thought. That's why Kabir says, man ke haare, haar hai, man ke jeete, jeet. The greatest killer is being thought, sir. That's why more than परिस्थिति, आपको मनोस्थिति को बदलाव करना है. Right? More than this, you have to change this, sir. And if you don't change this, please see, thought can make you a terrorist. Please see, thought can make you a terrorist and thought can make you a Buddha. इसलिए बुद्धा right mindfulness कहा. Thought can make you a terrorist and thought can make you a Buddha, sir. So therefore, the 10 powerful animals have not killed. It is mosquitoes. इसके ज़्यादा आपका thought has killed you. So thought can make you, thought can break you. So when Krishna Bhagavan says, right, आत्मा एव आत्मनः बंधुः, आपका मन ही एक बंधु है, मन एक शत्रु है. You have to understand this very, very clearly. For me, from an ordinary to extraordinary is not having, देखो देख लीजिए आप, right now टेक्नोलॉजी की, आई एम श्योर ऑल दिस ऑडियंस हियर, इतना ज्ञान है, इतना इल्म है आपका पास, यस और नो? तो आत्मविश्वास से बोल दीजिए यस ऐसा, राइट? इतना इल्म है, इतना ज्ञान है, यस, राइट. बट मेरा प्रश्न क्या है, मेरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपका नॉलेज हैज एनहांस्ड वावनेस, ए वाव, आश्चर्य, चकित, हैरान, आपका ज्ञान उसको एनहांस किया वावनेस, और आपका ज्ञान आकर स्नब किया वावनेस को. आप प्रश्न, यू ओनली टेल मी नाउ, राइट? ये सब नॉलेज टेक्नोलॉजिकली इतना सावी है, प्रेस करो, कंप्यूटर इज ऑन, पुट दिस अप, राइट, एसी इज ऑन. हमको नॉलेज इतना बढ़िया है, बट लॉट ऑफ पीपल ऑफ नॉलेज एक वाव का वाव को गुनी नहीं. सो नॉलेज has not increased हमारा वाव. और अद्भुत रस, नवरसा में एक रस है अद्भुत, अद्भुत रस को बढ़ाना है, बट हमारा ज्ञान अद्भुत रस को बढ़ाना है, बढ़ाता नहीं, ऐसे ही स्थगित हो गया. ओ हमको मॉल में प्रेस करो, ये आ जाएगा. Tell me, the purpose of knowledge is to increase वावनेस और स्नब वावनेस. इंक्रीज है ना, देखो करेक्ट उत्तर देता है हम लोग, बट जीवन में अवतरण नहीं करता हम लोग. Right answer we give, in life we don't bring it. Therefore there is no wow. रविंद्रनाथ टैगोर सिंपली एक ड्यू ड्रॉप, एक शबनम देखता है रविंद्रनाथ टैगोर, और कविता आ जाता है ऐसे ही. एंड मिस्टर कुप्पस्वामी वर्मा sees Niagara Falls and dysentery comes out. मेरा राजस्थान में पानी ही नहीं है, इधर व्यर्थ है पानी. एक वावनेस नहीं. And if you have, Lord Krishna says in the Gita, I am giving a different meaning of extraordinary. कृष्ण भगवान बोलता है एवरीथिंग एक अद्भुत होना चाहिए आपका जीवन. आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत शृणोति. द सीयर शुड बी वंडर, आश्चर्य होना चाहिए. योर लिसनिंग एक वंडर है, योर टॉकिंग वंडर है. अभी समझ रहा है वंडर है, नहीं समझ रहा है वो भी वंडर है. इट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. श्रुत्वापि न वेद तदपि आश्चर्य है. सुनने का बावजूद भी इल्म नहीं होता है, यह भी आश्चर्य की बात है. आर यू गेटिंग सर? एवरीथिंग आश्चर्य होना चाहिए. शिव बोलता है, शिव इन द शिव सूत्र, विस्मय योग भूमिका. आपका योग भूमिका, आपका फाउंडेशन ऑफ लाइफ एक विस्मय होना चाहिए. पॉज सर, राइट? आई हैव सीन मोर यू आर एजुकेटेड, एक वावनेस ही नहीं. फेस सीरियस प्रोफेसर लुक. इसमें उर्दू शायरी, चेहरे पे मुहरे गम है, हाथों खाल की तरफ, माजी भी दम की साथ है, अब हाल की तरफ. आपका चेहरे हैज द स्टैंप ऑफ सॉरो. चेहरे मुहरे गम है, हाथों खाल की तरफ, आपका फेस कट ही सॉरो हो गया.
वही माजी भी दम के साथ है। अब अतीत में इतना आता है, अतीत से इतना आता है, मादी भी दम के साथ है। आपका अतीत आकर इतना दम से पड़ता है, अब हाल की तरफ हाल चाल है बोलता ना, इसलिए फेस चेहरे मुहरे गम है। राइट, प्लीज सी, लर्न फर्स्ट टू स्माइल सर, learn to smile. If you understand, smile. If you don't understand, smile. And try to bring that उत्पत्ति of आश्चर्य। बच्चे लोग देखो, एक बटरफ्लाई तितीला को पिक्चर जाकर इतना खुशी है, सिंपली एक पत्थर लेकर वो कुत्ता बन जाता है, पत्थर आकर एक पक्षी बन जाए, इतना खुशी। हाँ, बड़ा लोग है, बंगला होकर भी हाँ क्या है, 10 साल का पहले खरीदना था। बिकॉज अद्भुत रस का एक खालीपन है हमारा भीतर। आर यू गेटिंग सर? यस और नो? देयर इज नो सेंस ऑफ वंडरमेंट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, आई लव दिस एग्जांपल। नो क्रिटिसिज्म टू एनीबॉडी। ये पंजाबी आता है मद्रास को, राइट, एंड मद्रास को तो एकदम चकित हो जाता है पंजाबी, बिकॉज शायरी का सेशन चल रहा है भीतर। हट इतना चकित हो जाता है बिकॉज मद्रासी लोग अगेंस्ट हिंदी, राइट, हिंदी का अगेंस्ट था। अरे 1000 लोग था, and the Madrasi with the dhoti, namum, plug, he's saying a shairi, dabba pe dabba, and all Madrasis wah 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 wah। अरे तो पंजाबी एकदम संभ्रमित हो जाता है, इसकी वाह वाह की क्या बात है। Then the Madrasi says, Amidi, Amidi, come down, dabba pe dabba, us pe dabba। And Madrasis folding their dhoti, jumping on the chair। इनिबिशन नहीं, एग्जीबिशन है। अरे 20 मिनट का आलाप चल रहा है, डब्बा पे डब्बा पे डब्बा, एंड मद्रासीज वाह 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 वाह। ये पंजाबी अटरली कंफ्यूज हो गया। जनरली कंफ्यूज है, बट मद्रास आएगा तो और कंफ्यूज है। वही मद्रास में तुम चाय पूछेंगे, इतना छोटा देता है, पंजाबी लोग इतना इतना बड़ा है। तो छके एंड दिस पंजाबी का बीपी बढ़ गया, 20 मिनट डब्बा पे डब्बा डब्बा। सो देन ही टचेस द पर्सन, है क्या शायरी है। एंड द मद्रासी से, अरे छोड़ो यार शायरी, हु इज द बॉदर शायरी। देन क्या क्या शायरी, डब्बा पे डब्बा क्या हुआ है। एंड द मद्रासी टेल द पंजाबी, अरे देखो ना क्या बैलेंस है, देखो डब्बा पे डब्बा पे डब्बा, इतना संतुलन है, इतना संवेदनशील है, इसमें मजा ले लो ना बे। क्या शायरी में केवल अल्फाज में मजा ले रहा है। देखो आपका भीतर एक अद्भुत रस हो, किधर भी लुफ्त ले सकता है, किधर भी। इफ योर बॉस इज स्कोल्डिंग यू, you'll see beautifully his mustache going up and down, up and down, up and down, उधर भी मजा लेंगे। इफ योर वाइफ इज बगिंग यू, और आपका भीतर एक अद्भुत रस हो, अरे यू विल सी फ्यू वाइफ इज बगिंग यू, इतना ब्यूटिफुल तालीम है, कम्युनिकेशन का तालीम है, education, because in the ragging and bugging there is pace, there is pause, there is pitch, there is punctuation, there is voice modulation, there is open statement, there is close statement, there is funnel technique, there is multiple closes and also disarming technique। अरे इतना फ्री तालीम हो गया आपको एजुकेशन। अरे हमारा भीतर एक वाव का गुनी नहीं। सो हमारा नॉलेज, हमारा इल्म, ज्ञान वाव को दबाकर स्टॉप करता है। हमारा नॉलेज वाव को बढ़ाना है। जब वाव को बढ़ाता है, देन ये फूल देखता है, फूल में भी देखो, when you look at a flower, sir, all of you seeing the flower? Yes. All right, look at the flower, you will see Saraswati in the flower. Saraswati stands for what? Learning है ना, knowledge है ना, yes or no? Yes. Lakshmi is wealth, Parvati is शक्ति। देखो अभी निर्गुण उपासना, फूल देखता है भी, फूल में भी इतना सरस्वती है। A person can do PhD on the pool. Yes or no, sir? How the bud becomes a flower, और फ्लावर से सुगंध का फैलाता है, इतना ज्ञान है उधर। अब एक अद्भुत रस हो, you will see Saraswati in the flower. Yes or no, sir? You will also see Lakshmi, wealth in that flower. They can see wealth also in the tremendous wealth, इतना समृद्धि है। Therefore, they are right, and a flower में भी इतना शक्ति है उधर। कभी कभी औषधि का गुण हो सकता है, एक तुलसी में औषधि का गुण है। सो पार्वती भी विद्यमान है, सरस्वती भी विद्यमान है,
लक्ष्मी भी विद्यमान. So therefore, if you look at a flower, sir, you will see Saraswati, Lakshmi, Parvati. Lakshmi need not come with a sari, etc. Right? Your eyes are blinking. इधर सरस्वती कितना है? Yes or no, sir? ये eyes blinking में people can do many PhD. Tell me yes or no. थोड़ा दम डालो ना आवाज में, नहीं तो दंपति बन जाता है. पति का दम नहीं, वो दंपति है. राइट, टेल मी, ये आईज ब्लिंकिंग इतना सरस्वती नहीं उधर? राइट, अरे इतना लक्ष्मी है, इतना वेल्थ है, बिकॉज एक तरफ का लकवा आ जाएगा, यू कांट ब्लिंक द आईज. ब्लिंकिंग इट लगता है इट इज सो इनसिग्निफिकेंट है, बट इतना वेल्थ है इधर, और इतना शक्ति है, इतना ब्यूटीफुल पर्दा देता है फॉर ऑल द दूल. यस और नो सर? सो देयरफॉर इफ यू हैव अ वाव, यू विल सी योर आईज, ये आपका किडनी में, योर लिवर में, इन योर वाइफ ऑल्सो, इन योर चिल्ड्रन, यू विल सी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती कैसा विद्यमान है. अब भक्त हो जाता है, कुदरत ही आपका भगवान हो जाता है. So therefore you have to bring that wow energy in your thing, sir. So therefore it is परिस्थिति एक है, but मनोस्थिति और ज्यादा है. Are you getting, sir? Then there is what is called आत्मस्थिति. Right? I'll come to आत्मस्थिति. मनोस्थिति के ज्यादा आपका भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा को बढ़ाना है. आप आत्मा को अवलोकन नहीं करेगा. लॉर्ड कृष्णा says in the Gita, when Arjuna asked the question, अर्जुना पूछता है एक प्रश्न कृष्ण भगवान को, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. कौन है स्थित प्रज्ञ? कौन है एक मुक्त पुरुष? कृष्ण भगवान क्या बोलता है? विभूति देता है, ऐसा नहीं बोलता है. शिष्य भंडार कितना है? नो, व्हाट कृष्ण भगवान सेज, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्ततोच्यते. आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आपका भीतर आत्मनि, आपका भीतर आत्म ऊर्जा में जब आप देख सकता है, उधर ही तृष्टा है, तृप्ति है. सर्वदा हम बहिमुखी हो गया, हम अंतर्मुखी नहीं. सो देयरफॉर दिस कॉल्ड आत्मस्थिति. परिस्थिति, मनोस्थिति एंड आत्मस्थिति. आर यू गेटिंग, सर? मगर हम लोग इतना बहिमुखी है, दौलत के पीछे, शौहरत के पीछे ही हमारा मकसद हो गया. यस और नो, सर? से दिस यस नो, अनलेस यू हैव स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम. अरे हमारा होल जीवन दौलत शौहरत के पीछे ही हो गया, पद और पदार्थ को ऊपर हो गया, परमार्थ का नहीं. एक आदमी लखनऊ में आकर मुझको कहा, स्वामी जी आई फेल इन लव, स्वामी जी इतना दर्द में है, इतना पीड़ा में है, नो आई नो वाई यू आर नॉट मैरिड. लखनऊ में पूछा था, आई फॉलन इन लव. मैंने पूछा, हु टोल्ड यू टू फॉल इन लव बाबा? यू हैव टू राइज इन लव. ये प्रेम गिरने की चीज नहीं, उठने का चीज है. उठ जाग मुसाफिर. यस और नो? बट आई फेल इन लव. आई टोल्ड हिम राइज इन लव. Then he says, स्वामी जी, you not understand, स्वामी जी एक बड़ा शेर है, शायर है, so he brings a शेर. चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं. मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं. I told him, you may be UP, I am from Bangalore, from Google only we can learn shairis. I told him, there's another शायर, सितारे से आगे जहां और भी है, अभी इश्क का इम्तहान भी और भी है. इश्क एक इम्तहान है, सितारों से आगे भी और है. क्यों सीमित हो रहा है अब के? एंड देयरफॉर अ ब्यूटीफुल शायरी आई टोल्ड हिम, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी. अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी. तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन. अरे आप मेरा नहीं बनता, नहीं बन, अपना तो बन. तो अपनी मन में डूब कर पाजा. And Krishna says, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः. अंदर देख लीजिए ना आप. हम अंदर नहीं देखता है, अंदर देख के ओनली गैस दिखता है हमको. ये अंदर देखने का कला ही आध्यात्मिक कला है. Alright, so therefore what should be the maqsad, sir? Indian contest,
From ordinary to extraordinary, from this, very quickly I'll say, what should be the maqsad? I'll see the keynote. I put in a corporate, I asked Mr. Gupta ji, should I put corporate or spiritual? He said combination of corporate and spiritual. So therefore, milavat hai is zamane mein. So therefore, I told them, see this now, I want you to see this now. I'll say, this is Indian martial art. I'm a student of martial art. Now I'm not practicing, I'm a student, and martial art emerged from India. Alright, please understand. Alright, so therefore Indian martial art, I put in the corporate context, sir, and this is the recipe for being extraordinary, sir. First is, आपका एक vision होना चाहिए. Vision, power, speed, skill, strategy. सुन लीजिए, शान से सुन लीजिए. In the corporate I talk like this, vision, power, speed, skill and strategy. आपका विजन क्या, आपका दृष्टि क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या, what should be the goal of life? I've seen throughout the world when I have addressed, what should be the goal of life? Throughout the world, I ask, most of us, the people goal क्या है? सफलता, सफलता, सफलता. Yes or no, sir? Yes. प्यार से देखो, it's only success, success, success. Success is the purpose of life. ये क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन एड्रेस किया बैंगलोर में, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन आई एड्रेस्ड in Bangalore is a girls' college. Alright, 800,000 girls were there. Alright, when these 1,000 girls were there, I just put this keynote presentation. Right, now focus on Marilyn Monroe. You know, Marilyn Monroe was the most beautiful actress in the history of Hollywood. Yes or no? Yes. The most beautiful actress in the history of Hollywood. All college girls था, a Catholic college था. So मैं डाल दिया इस सर photograph. And all college girls, unlike all of you, वाह इतना जज्बा से, वाह, because sexy photograph डाल दिया उधर, इतना जज्बा से, all screamed. I all asked this college girls, you all want to be beautiful like Marilyn Monroe? And everybody said yes. I said, all of you want to be as popular as Marilyn Monroe? And everybody screamed yes. I said, all of you want to be rich like Marilyn Monroe? And everybody say yes. Then I used a naughty question. Excuse me, Vice Chancellor ji. Alright, I am Krishna Bhakta hai. So therefore, a naughty question. You want to be sexy like Marilyn Monroe? अरे और जोर से चिल्लाता है. वो nuns एकदम confused हो गया. अरे wrong number, I brought wrong Swamiji into this. Alright, no, then said you want to be sexy? Alright, see, generally, not in Bhopal, if you see in many of the things, there women want to be sexy. So they wear a low pant, especially in Bangalore. इतना low pant है, you can see something of the backside. Generally, woman wants to have a sex appeal है. Alright. Then in Bombay airport में था मैं, business class में, I saw a man wearing a low pant. कभी कभी मेरा belt भी loose हो जाता है. So I thought his belt is loose, so I went to him and said, your pant is falling down. He said, mind your own business. And he further pulled it down. Then I updated my software. Not only women want to be sexy, men also want to be sexy. Alright. Then I said, you want to have multiple affairs like Marilyn Monroe? Everybody screamed yes. I said, whatever you want, आप लोग क्या चाहिए, उसको already प्राप्त हो गई. Yes or no, sir? So आपका नजर से, she is highly successful. Tell me yes or no? Yes. इसका बावजूद भी, she was in heavy depression, बहुत मायूसी स्थिति में थी, and she committed suicide at the age of 34, sir. आपका दृष्टि से successful, जीवन में successful, I mean, दौलत और शौहरत में successful, but जीवन में इतना विफलता, सफलता का बावजूद भी विफलता हो गया. So आपका विजन क्या होना चाहिए? That is the purpose of education, sir. What is the should be vision, sir? What should be the vision? Success is not Elvis Presley. Even now I listen to his music in English. My favorite singer, Elvis Presley. Itna successful. Right? People were pagal towards him, sir. And he was in heavy depression, drugs. He was also in depression and he died at tender age of 45. So success is not the be all. So what should be, sir, the goal of life? Happiness. Even hippie wants to be happy. He takes dhammaradam and happy. Alright? What should be? In the Indian context, sir, it is not safalata, it is paripurnata chahiye. Paripurnata.
Alright, successful नहीं, it is fulfillment. हम should be our goal, sir. Alright, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति तद्वत्. कृष्ण भगवान बोलता है एक आपूर्यमानम, ये फुलफिलमेंट का खोज होना चाहिए. केवल सफलता पर्याप्त नहीं होता है, अपर्याप्त है. बट परिपूर्णता, सफलता चाहिए बट सफलता में केवल उधर सीमित नहीं होना चाहिए, परिपूर्णता का खोज और तलाश होना चाहिए. सो दैट शुड बी अवर विजन ऑफ अवर लाइफ. आई से ब्यूटिफुल हिंदी पोएम एंड टेल मी, जो कागज के फूलों में खुशबू ढूंढ लेते हैं, जो कागज के फूलों में खुशबू ढूंढ लेते हैं, जो छोटे छोटे चीजों में बड़ा सुख पाते हैं, जो अपनी परिवार में फरिश्ते ढूंढ लेते हैं, वही लोग जिंदगी जीते हैं, वही लोग जिंदगी जीते हैं. क्या है इसका पंच, इस कविता का पंच क्या है, इसका आत्मा क्या है इस कविता का? पीपल हैव नॉट हर्ड मी, आई सेड इन द टीवी मेनी टाइम्स दिस. क्या है पंच इसमें, इस कविता में क्या पंच है? राइट, देखो आप खोजना है, तलाश करना है. जो कागज के फूलों में खुशबू ढूंढ लेते हैं, आप खोजना है, तलाश करना है, अन्वेषण करना है. मगर हम नो सुनता है वो परिपूर्णता चाहिए, सो इस मंदिर का जाओ, उस मंदिर का जाओ, गुरुद्वारा का जाओ, और उधर भी भीख मांगो. वो अपेक्षा हो गया. हमारा क्या चाह है, हमारा चाहत एक अपेक्षा ही हो जाए. इट हैज बिकम एक्सपेक्टेशन ओनली ना. Somebody went and asked, I want to get married, my wife should be Hindu. हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? अरे भाई हिंदी वर्ड है ना हिंदू. मून, नो, चंद्रमा. हिंदू मीन्स चंद्रमा. I want my wife to be Hindu. The marriage counselor said, you want your wife to be moon? No, I want my wife to be like moon, Hindu. She should come in the night, go away in the morning. इतना अपेक्षा अपेक्षा, हमारा जीवन देखेंगे सब अपेक्षा अपेक्षा. वो फुलफिलमेंट चाहिए, उसको भी अपेक्षा हो गया. राइट? यस, नो सर? नो, अपेक्षा नहीं, आप खोजना है, तलाश करना है, अन्वेषण करना. जैसे साइंटिस्ट है, फ्रॉम भूमि से क्रूड ऑयल मिलता है, और क्रूड ऑयल का अंदर देर इज प्लीज पेट्रोल, पेट्रोल का अंदर व्हाइट पेट्रोल, गैस, सल्फर. अरे स्थूल रूप से नहीं दिखता है, बट खोजेंगे इसका अंदर इतना इतना संपत्ति है. ऐसे ही हमारा अंदर एक संपत्ति है, अगर खोजना है, केवल अपेक्षा नहीं. हम लोग सर्वदा अपेक्षा मार्ग में चले कर दिन भिखारी हो जाता है. सो देयरफॉर आवर विजन ऑफ लाइफ, प्लीज सी, फर्स्ट आवर विजन इज परिपूर्णता, सर. And paripurnata happens, please understand, it happens, big topic, so I will not talk. It's a paripurnata कब happens, when there is दो तरफ का सफलता और संतृप्ति का संतुलन होना चाहिए. Under the basis of dharma, under the base of dharma, सफलता, सक्सेस है, और संतृप्ति भी होना चाहिए. केवल संतृप्ति पर्याप्त नहीं होता है, बिकॉज भगवान हम क्रिएटिव एनर्जी हमको किया है. सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस का परिभाषा क्या है? कौन बोलता है वो सफल है आदमी? गेटिंग व्हाट यू लाइक इज सक्सेस. इतना सिंपल है. हमको 1 करोड़ चाहिए इस साल में, सो मेरा सक्सेस है. बट अंबानी इसको 1 करोड़ तो एक पीनट्स है. सो अल्टीमेटली सक्सेस है इज गेटिंग व्हाट यू लाइक. यस और नो सर? For Ambani is different, for you and I is different, for Bill Gates is different, for Warren Buffett is different. So success is getting what you like. Yes or no? Bagar, ye will पर्याप्त. You have to, satisfaction is liking what you get. You have to get what you like and like what you get. Alright, वो आपका मस्तिष्क वो भी सीखना पड़ेगा. Getting what you like and liking what you get. Are you getting, sir? I'm not going to give how to go about it because only 1 hour is given to me. So you have to get what you like what you can. इसका लगता है 2 different polarities है. वो ये polarities में जब polarize हो जाता है, ये द्विविधा को आप polarize करता है, राइट, सामंजस्य हो जाता है, सृजनात्मक सामंजस्य होता है, तभी आपको परिपूर्णता का राइट अनुभव हो जाता है. That's why there's a beautiful Hindi poem. It says, वहां हंसी यहां आंसू,
वहां हंसी यहां आंसू, गुलने दे, मिल जाने दे, खलियों को खिल जाने दे। सॉरी, वहां हंसी यहां आंसू, गुलने दे, मिल जाने दे, नई बरसात आने दे, देन कलियों को खुल जाने दे। लेट अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू बरसात, न्यू रेन हैपन। पोलैरिटीज लगता है बहुत विपरीत है, बट स्टिल सृजनात्मक सामंजस्य में ये दोनों का तालमेल हो सकता है। सो सफलता और संतृप्ति का भी एक सम्मिलन, तालमेल हो सकता है। यही सृजनात्मक ऊर्जा है सर। सो देयरफॉर व्हेन इज देयर इट इज विजन। सेकंड इज, आई विल गो फॉरवर्ड, इज पावर। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ लाइफ सर? हम लोग को पावर ऑफ शिकायत ज्यादा है, पावर ऑफ कंप्लेन, गोइंग कंप्लेन। वी डोंट हैव द पावर ऑफ कमिटमेंट। देखो, कमिटमेंट एक संकल्प शक्ति है। वी हैव द पावर ऑफ कंप्लेंट है, शिकायत को गुण ज्यादा है। पीपल इन द गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा आता है, प्राइवेट सेक्टर जाओ, माय गॉड इतना टारगेट 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 सुनेंगे तो उसको गूस बबल्स आता है। राइट, एवरीवेयर शिकायत का एनर्जी। राइट, सो द पावर इज, ये पावर ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। व्हेन यू हैव द पावर ऑफ कमिटमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू हैव द पावर ऑफ कमिटमेंट, द इम्पॉसिबल कैन हैपन। ऑल ऑफ यू नो स्टीवन हॉकिंस, नो? You know, don't know? How many of you don't know? Raise your hand. Okay, you know. So I don't show the video. Stephen Hawkins देख लीजिए. He is इतना, but still I like to show it because he is my favorite. Stephen Hawkins. Please see, he is one of the greatest scientists this world has produced. Please see this. इतना great scientist है, Stephen Hawkins है. All right. At the age of 24, he was doing his PhD. कोई whatever that ailment, सब कमजोरी हो गया, अंगहीन हो गया। तो ओनली हिज ब्रेन वॉज वर्किंग एंड द डॉक्टर से ओनली 2 years आपका लाइफ है। देन यू नो एट दैट स्टेट, इस हालत में क्या प्रश्न पूछता है स्टीवन हॉकिंस? ही आस्क्ड द डॉक्टर, प्लीज अंडरस्टैंड, at 2 years are going to live, every organ is going to go slowly, will my brain get affected? He said, brain का अलावा everything will get affected. इतना ही ख्याल को पकड़ दिया, इतना ही विचार को पकड़ दिया। और पत्नी का प्रेम, वो गर्लफ्रेंड था, बाद में पत्नी हो गई, वो प्रेम, दोनों में प्रेम में, राइट, एवरी पार्ट इज गॉन। नाउ ही इज 74 years and still alive. He is one of the greatest scientists this world has ever produced. And if you see everything, his voice went away. When he came to India, through a laptop, through a voice modulator also he spoke. Everything gone brain. इतना पावर देखो, मोर देन फिजिकल डिसेबिलिटी, साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी इज क्रिपलिंग। बीथोवन, सुना है बीथोवन? यस, नो? राइट, हु इज वन हु, द 5th symphony he created western music. He was deaf when he created the 5th symphony. I can't understand as a student of music कैसा डेफ हो सकता है, तो मास्टरपीस था 5th symphony. सो फिजिकल डिसेबिलिटी का बावजूद भी इतना सृजनात्मक ऊर्जा था। मतलब क्या? साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी नहीं हुआ उसको। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। थॉमस आल्वा एडिसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दिस वर्ल्ड, मेनी क्रिएशन सर, पर्सन वाज हाफ डेफ। हेलन केलर। सो देयरफॉर आई एम ओनली टेलिंग दिस वन, राइट, शरीर का कमजोरी एक है, बट मन का कमजोरी नहीं होना चाहिए। मन इतना सकारात्मक होना चाहिए। देन व्हेन यू हैव दैट सर, a positive mind when you have, you find you can bring the extraordinary out of the ordinary sir. O.J. Simpson, I can go on giving you examples sir. One. Second, right, you should have the power of not getting hurt. Please understand. Vision, power of not getting hurt. हम लोग quickly get hurt. और hurt में एकदम विक्षिप्त हो जाता है मन, एकदम विगड़न हो जाता है। राइट, ड्रॉप गेटिंग हर्ट, रिफ्यूज टू गेट हर्ट सर। व्हेन यू कैन रिफ्यूज टू गेट हर्ट सर, देन यू विल फाइंड यू विल बी सो पावरफुल इन लाइफ। हाउ कैन यू हर्ट सर? Swamiji, my master called me a monkey, Swamiji. And got hurt me. अरे if he calls you a monkey, क्या करना है? Look here, make sure there are no monkeys. डबली चेकअप कर दीजिए। कभी कभी जेनेटिकल चेंजेस भी हो जाता है।
चेकअप करके, and then you tell him, go to an ophthalmologist, get your eyes checked up. इतना सरल की बात है ना? Yes or no, sir? But somebody calls you a monkey, you say donkey, he says bulldog, you say buffalo. मतलब क्या है? डीप विदिन आपका भीतर एक शक है, मे बी आई एम अ डोंकी, अकॉर्डिंग टू डार्विन थियरी है. आपका ज्ञान को ऊपर विश्वास ने दूसरों का अज्ञान को ऊपर इतना विश्वास हो गया. Yes or no, sir? So therefore, first important, you should refuse to get hurt. Now all of you, please, sir. Somebody says unpleasant word, you get hurt, no? हमारा अनुभव ना? Yes or no, sir? I'll request you, sir. I'll request you. I want you to say idiot and catch it and show it to me. And if you show me that idiot, there I'll give you 1 crore. I've got rich devotees. Can you all try, please, all of you? Like, come on. Don't be like two professors. Be like, keep it. Like cricket match, keep it. Come, keep your hand. Come on, all of you. All right. Say idiot, catch it. Try it. Idiot, catch it. Try karo saab, bhai saab. I know you're all big people. Be little. Come on. Say idiot, catch it. देखा वो माँ नहीं, केवल हवा है ये. तो हवा से क्या हो जाता है? Alright, you will get depression, you will get hurt, you will get upset, you will even kill somebody. Yes or no, sir? Yes. So it is only hawa. Why should words hurt you? Sir, your brain has to grow, graduate and become matured. Somebody calls you an idiot is hawa. Somebody calls you a monkey, it is hawa. And if you are a Hanuman Bhakta, you will say Jai Bajranga Bali. और खुशी हो जाता है. So your brain has to learn. Unpleasant words can't hurt you. Your interpretation hurts you, sir. आपका मानसिक व्याख्या आपको चोट लगता है. इसको बदलाव, इसको रूपांतर करना है. When you are not hurt, आपका विक्षिप्त मन नहीं होगा, एकाग्रत मन होगा. जब एकाग्रत मन होगा, sorry for this unpleasant word, from a bullshit you can create गोबर गैस. अंग्रेजी में bullshit में खराब है. And somebody focus किया from a bullshit और गोबर गैस क्रिएट किया ना भाई. वॉल्ट डिज्नी एक चूहा देकर सडनली न्यू आइडिया, व्हाई कांट आई मेक द चूहा टॉक, एंड मिकी माउस का निर्माण कर दिया. वो इतना अनसक्सेसफुल, इज अ फेलियर एक्चुअली वॉल्ट डिज्नी. सो देयरफॉर ग्रेट ग्रोथ विल हैपन सर व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट हर्ट. देन मन एकदम सुकून हो जाता है, शांति हो जाता है. देन आपका भीतर का हायर ऊर्जा होता ना, वो प्रकट हो जाता है. यस और नो सर? यस और नो? So bring that, sir, into your thing. So vision, power, third is speed. See all of you? Say Baba. तो दम्मी नहीं, right? Only पानी पूरी खाता है क्या? So थोड़ा दम डालो. The vision, power. See, why I'm saying is, if you have to teach young people, it is not the words, sir. It's the feeling, as the beautiful Shairi says, no? शेर में बंदिशों अल्फाज काफ़ी नहीं है. शेर में बंदिशों अल्फाज काफ़ी नहीं है. जिक्र का खून चाहिए असर के लिए. जिक्र का खून. Alright, Dari. So put that jazba when you're teaching people. Right? Bring that energy more than the words, sir. आपको ऊर्जा, right? असर पड़ना दूसरों को. So vision, power, speed, sir. आप सब सुन लीजिए. You have heard this. So now I'm saying something very important. Listen, it can change your life. Are you ready? थोड़ा दम डालो ना. Is it ready? Yes. Right now, please see. Say now, right now, how have we positioned happiness, all of us? How have we positioned happiness in the spectrum of time? Sir, you are giving a smart answer. You have to give an honest answer. हम लोग क्या, how have we positioned happiness, sir? I get married, I'll become happy. I'll become the vice chancellor, I'll become happy. I'll have a house in Switzerland, I'll become happy. For some people, neighbor divorces, I will become happy, because options open up. So I will become happy. For most of us, साधारण से भविष्यत में ही हमारा happiness है. Yes, isn't it? All right, I get this, I'll become happy. I'll get this, I'll become happy. All right, now what is time, sir? What is time? Time is past, present and future. Isn't it?
भूत, वर्तमान और भविष्य. That is the description of time. But the truth of time क्या है? It is present है. The description of time past, present and future है. The truth of time present है. Life तो present, 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 present. वो present से पीछे देखेंगे, the past was present and future will be present. So truth क्या है? Past भी present था, भविष्य भी present होगा. सो देयरफॉर हमारा जीवन एक सफर हो गया वर्तमान की गति. यस और नो? जब आपका मन में ख्वाहिश का कारण, अभिलाषा का कारण, अभिप्सा का कारण, आरजू का कारण, इफ यू से आई विल पुट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर व्हेन दिस ख्वाहिश गेट्स फुलफिल्ड, आई एम गोइंग टू बिकम हैप्पी. When you put in the future, then सूक्ष्म रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान को क्या बोलता है आप? I am not happy. I am not happy. So punching होता है. I am not happy. I am not happy. So वर्तमान प्रोग्राम हो गया. I am not happy. Not happy. Because मेरा आरज़ू का अनुसार भविष्य में going to be happy. So वर्तमान को हो गया. Then this वर्तमान life reaches 1 lakh rupees और 1 crore rupees. वो फ्यूचर में रीच होता है, वो काबिल होता है. When it happens as what? Present. Yes or no? But already like a terrorist, the present is programmed. I am unhappy. So unhappy person gets 1 crore. He continues to be unhappy. And the mind says 10 crores I will become happy. Yes or no, sir? पुनरपि मरणम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे. जन्मांतर में इस चक्कर में अटक गया हम लोग. Yes, that's why Vajpayee beautifully, our ex-prime minister says this. खल खल करते आज खल खल करते हाथ आज से निकले सारे. खल खल करते आज हाथ से निकले सारे. भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे. खल खल करते आज हाथ से निकले सारे. भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे. द गेम ऑफ बीइंग द प्रेजेंट हार गया हम. और जीवन तो वर्तमान का गति हो गया. अब वर्तमान में अनहैप्पी है. हमारा आरजू बोलता है ओनली फ्यूचर गोइंग टू बी हैप्पी. बट जो फ्यूचर जब प्रकट होता है वो वर्तमान रूप से ही प्रकट होता है. यस और नो सर? सो देयरफॉर यू हैव टू पोजीशन हैप्पीनेस. आपका एकदम परिभाषा, आपका फलसफा चेंज होना चाहिए, आपका सिद्धांत चेंज होना चाहिए. हैप्पीनेस इज नाउ. राइट नाउ यू हैव टू बी हैप्पी सर. यस और नो सर? Right now you have to be happy. With wife, without wife, in spite of wife. With husband, without husband, in spite of husband. Right now. No, I'll get married, I'll become happy. No. Right now you have to be, sir. ये speed से आप जीना है. You can live in that speed. I'm going to be happy, sir. Please understand. Please see. You will know how to live the journey. As जगदीश फेमस गज़ल है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है. गम और खुशी कुछ देर की साथी है, फिर रास्ता ही रास्ता है, ना हंसना है ना रोना है. अल्टीमेटली मरने का बाद ओनली रास्ता ही होता है ना भी. वो रास्ता में सफर में राइट परिपूर्णता यू हैव टू ब्रिंग इन द प्रेजेंट सर. दैट इज द स्पीड. इज इट क्लियर सर? Right? Is all this एक skill चाहिए. एक skill. Even listening is a skill. Looking at life is a skill. That's a very big topic, so I will not get into it. Everything एक skill है. Teaching is a skill. Living life also yoga कर्मसु कौशलम. कृष्ण भगवान एक skill है. आप skill को ढूंढना है. Everything is a skill. Playing cricket is a skill. Football is a skill. Being a good shagird is a skill. Going a good vakta is a skill. Are you getting, sir? Yes. All right. And that speed to be in the present and the skill, you have to encash it. Or else, oh Swamiji, after becoming the dean of the college, I'm going to become happy.
इस इंतज़ार से आपका जीवन का सफ़र चल जाता है। ऐसे द ब्यूटीफुल, वो छम छम करती आई और छम छम करती चली गई। मैं सिंदूर लेकर खड़ा रहा, वो राखी बांधकर चली गई। आपका यात्रा ऐसा हो जाता है। सो देयरफॉर फॉर हेवन सेक अभी एनकैश कर दीजिए आप, अभी इसका लुफ्त। वो पैसा आने का बाद आई एम गोइंग टू बिकम हैप्पी। यस और नो सर? सी यू एजुकेटर्स हैव सो मच टू ऑफर। हो पैसा आने का बाद, डिड यू कम विथ पैसा? बिना लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन का खातिर इतना सफर करना पड़ा। बिना लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन का खातिर इतना सफर करना पड़ा। सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे इधर ही आप लुफ्त लेना है। स्पीड एक स्किल है, बाद में एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है। हम लोग षड्यंत्र बहुत अच्छा मालूम है, बट रणनीति इज डिफरेंट फ्रॉम षड्यंत्र। आर यू गेटिंग सर? And in our Indian culture, especially the Hindu Sanatan Dharma, हमारा रणनीति क्या होना चाहिए? सिंप्लीफाई योर लाइफ, कॉम्प्लिकेट लाइफ मत कर दीजिए। अहंकार ग्रेटेस्ट कॉम्प्लिकेशन है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। सिंप्लीफाई करो। आप सिंप्लीफाई करेंगे, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। कॉम्प्लिकेट करेंगे अहंकार का कारण, योर लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल। जीना सरल है, मरना सरल है, शादी करना सरल है, तलाक भी सरल है, तो मुश्किल क्या है? सरल होना ही बड़ा मुश्किल है। सरल होना ही बड़ा मुश्किल है। सिंप्लीफाई। आई एम अ गुरु, बट दिखावा। आई एम अ गुरु, दिखावा, 1000 लोग जा पीछे। सो देयरफॉर एवरीथिंग सुपरफिशियल हो गया हमारा लाइफ। सीधे अहंकार का कारण, स्पिरिचुअल फील्ड में हो, राजनीतिक में हो, किधर भी ऑल दिखावा है। Therefore this beautiful शायरी says, तेरा हर ख्याल है सरसरी। सरसरी मतलब सतही। तेरा हर ख्याल है सरसरी, तेरा हर कमाल है ज़्याहरी। ज़्याहरी मीन्स दिखावा। तेरा हर ख्याल है सरसरी, तेरा हर कमाल है ज़्याहरी। कोई दिल की बात करो तो क्या, तेरे दिल में आग तो है ही नहीं। आपका दिल में आग नहीं है तो क्या दिल से बात कर सकता हूं इस तत्वों के ऊपर? एंड देन यू विल से, स्वामी जी मेरा नसीब खराब है, नसीब खराब है, आशीर्वाद दे दो। अरे अब आपका नज़र खराब है बाबा। नज़र और नसीब का ऐसा इत्तफाक है, नज़र और नसीब का ऐसा इत्तफाक है। आपका नज़र को क्या चीज़ पसंद है, आपका नसीब में नहीं है। आपका नज़र में क्या चीज़ पसंद है, आपका नसीब में नहीं है। और नसीब में लिखा हुआ चीज़ आपका नज़र नहीं। यही इत्तफाक हो गया। आशीर्वाद दे रहा, मेरा नसीब खराब है क्या? अरे अरे अब इतना आपका नसीब में है, आपका नज़र है क्या इसका? टेल मी यस नो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। इट्स अ ब्यूटीफुल शायरी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हु इज द नरगिस हियर? संजय दत्त का बदर है क्या? नरगिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ही सेज हजारों साल नरगिस बेनूरी पर रोती है। मेरा नूर को कोई भी देखने, दे नॉट सीइंग इट, बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में, इन द गार्डन ऑफ लाइफ दीदावर, one was got eyes paida. So who is the nargis? We ourselves are the nargis. Inside us there is an atma which is like nargis, but इसका नूर नहीं देख रहे हैं हम लोग। अरे मुमताज के पीछे जा रहे हैं आप, आपका नूर नहीं देख रहा है। सो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा सर। सो देयरफॉर सिंप्लीफाई, अहंकार को छोड़ दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए आपका लाइफ। एंड व्हेन यू डू दैट सिंप्लीफाई, दैट इज कॉल्ड इन संस्कृत एज अंगाकार, मालाकार, मधुकार वृत्ति। 3 वृत्ति है। अंगाकार वृत्ति मतलब टू गेट कोल, एक वन को दहन करता है हम लोग। टू गेट कोल, कंज्यूमरिज्म ऐसे ही है। टू गेट कोल यू बर्न द फॉरेस्ट, टू गेट अंगाकार। एक तरफ का स्ट्रैटेजी हो सकता है जीवन में। मधुखारा वृत्ति मतलब, अरे क्या, आई डोंट बर्न द फॉरेस्ट टू गेट कोल, व्हाट आई डू,
राइट, मालाकार वृत्ति सेकंड और सेंसिटिव हो जाता है, अरे वन को डिस्ट्रॉय मत करो, राइट, फूल को कट द टेक द फूल एंड राइट, डोंट डिस्टर्ब द फॉरेस्ट, डोंट डिस्टर्ब द पेड़, राइट, टेक द फूल एंड मेक अ माला आउट ऑफ योरसेल्फ. सो इट्स कॉल्ड एज मालाकार वृत्ति है. और सूक्ष्म हो जाता है, देन मधुकार वृत्ति. Bee, what is it does? It doesn't even destroy the flower. All right, it cross pollinates and creates honey, sir. So take the minimum and give out madhu, sir. That is simplifying your life. So therefore, consumerism is right. For to get your selfish end, you burn the whole forest, sir. At least can you become malakara vritti, madhukara. So when you bring this into your perspective, sir, look at life. Sir, when you look at life, like a painter, when he looks at the flower, if M.F. Hussain looks at the flower may be 10 rupees. But M.F. Hussain paints the flower, it can be 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. Yes or no? Yes. Now, what is that painter which sees in the flower, which is the ordinary people, साधारण लोग नहीं देखता है? 1000 आंख से चित्रकार देखता है फ्लावर को, 1000 आंख से. And the atma of the flower, he paints it in a language that you and I can understand, sir. But 1000 आंख से फूल देखता है चित्रकार. सो तो हमारा जीवन में भी 1000 आंख से देखना है. That's why सहस्र चक्र is called 1000 petals है. जीवन को 1000 आंख से देख लीजिए. और 1000 आंख से, जैसे वॉल्ट डिज्नी अनसक्सेसफुल कार्टूनिस्ट, वो छुआ का देखकर, राइट, सडनली एक योजना आ गया, ख्याल आ गया, व्हाई कांट आई मेक द छुआ टॉक, एंड देन ही क्रिएटेड व्हाट? वॉल्ट डिज्नी, सर. थॉमस आल्वा एडिसन 900 times he failed in creating a bulb, and somebody says Thomas Alva Edison, अब निराशा होना चाहिए. 900 odd times he says no, 900 odd times I learned how not to create a bulb. Failure is my fertilizer to success, sir. हम जीवन 1000 आंख से देखो, then you will see, like I said, in the flower you will see Saraswati, you will see Lakshmi, you will see Parvati. In your eyes, in your kidney, in your liver, in somebody else you will see, please sir, and then you will see the extraordinary in the ordinary. एक कागज है, एक कागज किधर से उत्पत्ति हुआ? पेड़ से है ना. कागज तो व्यष्टि है, बट आपका समष्टि दृष्टि होगा, देन यू विल से एक कागज किधर से आया? पेड़ से. पेड़ कैसा आया? वृक्ष कैसा आया? आकाशा वायु आपहा अग्नि, सूर्य का, वायु का, अग्नि का. सो समष्टि शामिल है एक वृक्ष में, और वृक्ष कागज का उत्पत्ति हुआ. सो कागज तो व्यष्टि है, बट समष्टि दृष्टि होगा, देन यू विल सी द समष्टि इन द व्यष्टि, सर. सो देयरफॉर यू विल स्टार्ट सीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी in the ordinary when you bring that drishti. And we say, if you bring bhakti in your life, you will bring that dimension in your life, sir. And therefore the extraordinary in the ordinary is one dimension. Second, आपका role models अच्छा होना चाहिए. आपका role models कौन होना चाहिए? Who brings the best out of you. ये role model होना चाहिए. Always going complaining. No. To bring out the best, sir. When you bring the best, sir, you should optimize an experience. Magar everything is an experience. I'll say this in my talk. Every time nowadays people are afraid. अरे क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे तो बुरा होगा? बढ़ते रहो मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या होगा? तजुर्बा तो नया होगा. तजुर्बा तो नया होगा. वो तजुर्बा को अनुभव करो. और कृष्ण भगवान बोलता है, पश्यन स्पृश्यन जिग्रन अश्नन उन्निशन निमिशन नपि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते मगर अहम किंचित न करोमि. इसे सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, ये केवल संवेदना है, ये केवल अनुभव है, अनुभूति है. मगर आप अहम डालता है उधर. जब अहम डालता है, अहम का एजेंडा आ जाता है इसमें. जब अहम का एजेंडा आ जाता है, देन जीवन विघटन हो जाता है. अहंकार का एजेंडा छोड़ दीजिए, भक्ति का ले लीजिए.
When you bring bhakti into your life, sir, your life will become extremely different. Samashti, you have to look at the Veshti, sir. Then please see, then you will start seeing the Naseeb also. You will see so much beautiful things are happening. If then a paripurnata ka anubhav hota hai, और परिपूर्णता का अनुभव, right, please see, for me is that real purpose, sir. Not your daulat, not your shaurat, not your मान, not आबरू मिला बेआबरू मिला, that is all. ये बच्चों का खेल है, अरे बच्चों का खेल है. Alright, bring पूर्णता to you and bring पूर्णता to others. ये बड़ा योगदान है. Then you will not be like the person, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो, पैसा आने दो, हम कुछ कर कर दिखाएंगे. और पैसा बोलता है कुछ कर कर दिखाओ तब मैं आऊँगा. पैसा बोलता कर कर दिखाओ. जब आपका भीतर एक अहंकार का ये जटिलता नहीं हो, अस्मिता का ऊर्जा हो, देन यू विल फाइंड कुछ कर कर दिखाएंगे. खुद को आनंद दे दो, दूसरों को भी आनंद है. देन दैट इज द रियल पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट, सर. ऑल योर दौलत और योर शौहरत is not going to be really helpful. Then please, if this understanding happens, you will start seeing the extraordinary in the ordinary. I didn't keep a track of how long, so I am just